Hello, friends, welcome back to Insight Learning. Today, we'll be studying The Pulley, which is 2.4 poem of your syllabus. Okay, so this is for standard 10th, right? So, आज हम ये पढ़ने वाले हैं. This is a very easy and a basic poem. Okay, easy to understand, easy to get into. I will explain it to you in a way that you will understand everything very soon. Okay, now let's just start the poem. So basically this is written by George Herbert. He was a Welsh poet. Okay, now all these things, all the introductory part is there for you to read, but if you don't want to, it's just fine. This will basically help you in writing your appreciation. But if you are referring a book, whether it is Master Key or Navneet Ka Digest, it's just fine that you don't read this part. But if you read it, it's just better to understand the poet, right? So yeah, we'll just start with the poem. So let me just read it first, and then we will start understanding what is given about it, right? So when God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us, he said, pour on him all we can. Let the world's riches, which dispersed lie, contract into a span. So strength first made a way, then beauty flowed, then wisdom, honor, pleasure. When almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay. For if I should, said he, bestowed his jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the God of nature. So both should losers be, yet let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness. Let him be rich and weary, that at last, if goodness led him not, yet weariness may toss him into my breast. Okay, so basically ये पोएम में क्या कहा गया है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है. व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब गॉड ने सबसे पहले मैन को बनाया, ही वॉज हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स. नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ एन इमेजिनरी थिंग, क्योंकि ऐसा होता है तो नहीं होगा, बट स्टिल यहाँ ऐसा दिया है तो हम ऐसा मान लेते हैं, राइट. सो गॉड हैड अ ग्लास. ओके, गॉड हैड अ ग्लास जिसके अंदर सारी ब्लेसिंग्स थी उनकी. ओके, एंड ही वॉज रेडी टू पोर एवरीथिंग दैट ही कोड. ठीक है, अब देखो अब क्या लिखा है. लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, let the world's riches basically means wealthy people, rich people, which dispersed lie. Okay, so जो अमीर लोग हैं, okay, यहाँ नीचे सब बिखरे बिखरे हैं. dispersed basically means scattered. to scattered का मतलब आपको पता होगा बिखरना, right? एक जगह इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवनेस. और दूर 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 रहने को क्या बोलते हैं, स्कैटरनेस. ओके, सो बेसिकली जो लोग बिखर चुके हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इज एन अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्पोज्ड, राइट. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड. इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू collect in a place, right? Dispersed means to scatter into a span. Span is basically a place, a small space. ठीक है, एक छोटी सी जगह में जो ये इतने सारे बिखरे हुए लोग हैं उनको गॉड को इकट्ठा करना था, मतलब बेसिकली सबको एक साथ लाना था, राइट. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे. स्ट्रेंथ, ओके, सबसे पहला गिफ्ट जो था गॉड का, दैट वाज स्ट्रेंथ, राइट. दैट वाज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, देखो आपको कोई भी काम करना है, सो आपके लिए स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, यू वॉन्ट बी एबल टू डू वर्क. सो सबसे पहले गॉड ने क्या किया, ही फर्स्ट पोर्ड स्ट्रेंथ इनटू अस. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग दी. उसके बाद स्ट्रेंथ के बाद कौन आया, स्ट्रेंथ के बाद ब्यूटी आई. ठीक है, ब्यूटी इज़ बेसिकली ब्यूटीनेस, यू कैन से, है ना, अच्छे दिखना, वो सब आया. ओके, देन फ्लोड विजडम, ऑनर एंड प्लेजर.
ओके, नाउ दीज आर एडजेक्टिव्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें आई. सो सबसे पहले स्ट्रेंथ, फिर ब्यूटी. विजडम इज बेसिकली अ नॉलेज विच यू हैव. ऑनर इज ऑनर इज रिस्पेक्ट, है ना. प्लेजर, प्लेजर इज हैप्पीनेस, जॉय. ठीक है. व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, जब सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, गॉड मेड अ स्टे. गॉड थोड़े से रुक गए. ही मेड दिस प्रोसेस अ बिट मोर स्लो. ओके. परसीविंग, perceiving is basically noticing or becoming conscious. Conscious is basically to get aware of that alone of all his treasures rest in the bottom lay. सबसे नीचे क्या रखा था? सी इफ़ देयर इज़ अ कंटेनर और अ ग्लास, यू में से पहले कुछ चीज़ें रखी होती है, लास्ट में एक छोटी सी चीज़ रखी होती है या कोई और चीज़ रखी होती है, राइट. सो सबसे नीचे था हमारा रेस्ट. ऊपर था स्ट्रेंथ, नीचे था रेस्ट, है ना. बीच में भी चीज़ें थी ये सारी जो मैंने आपको बताई. ओके, जस्ट मार्क इट इफ़ यू वांट टू, ताकि यू विल जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ अबाउट क्या क्या था, राइट. सो यस, रेस्ट था सबसे बॉटम में. ओके. फॉर आई शुड, फॉर इफ़ आई शुड, अब वो सोच रहे हैं कि मैं रेस्ट दूँ इनको या नहीं दूँ. बेस्टाउ दिस ज्वेल ऑन माई क्रिएचर. क्रिएचर इज़ बेसिकली क्रिएशन, यू कैन से. हम एक क्रिएशन है गॉड के. सो वो बेस्टाउ कर रहे थे. बेस्टाउ बेसिकली मीन्स दूँ या नहीं दूँ. गिव एज अ गिफ्ट, शुड आई गिव दिस, ऐसा वो सोच रहे थे. दिस ज्वेल, ज्वेल बेसिकली इज़ अ प्रेशियस थिंग. ठीक है. लाइक डायमंड इज़ अ प्रेशियस, डायमंड इज़ अ ज्वेल. इट इज़ बेसिकली अ वैल्यूएबल और प्रेशियस थिंग. ओके. यहाँ पे किसको ज्वेल कहा गया है? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे रेस्ट को ज्वेल कहा गया है. ओके. देन ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी. अडोर, अडोर बेसिकली मीन्स टू लव और टू, हाँ, टू लव, है ना. अब गॉड ने क्या सोचा, मुझे इनको रेस्ट देना चाहिए या नहीं. क्यों वो ऐसा सोच रहे थे? सबसे पहले वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस था. ही, इट वाज लाइक अ ज्वेल टू हिम. दूसरा, वो ये सोच रहे थे कि जो ह्यूमंस होंगे वो मेरे ज्वेल को मुझसे ज़्यादा अडोर करने लग जाएंगे. मतलब मेरे ट्रेजर्स को मुझसे भी ज़्यादा अडोर करने लग जाएंगे. उन्होंने ऐसा सोचा. मतलब जो लोग होंगे वो मेरे पास नहीं आएंगे. They will just be happy because they will have everything they need in their life, right. Now let me just tell you, okay. अब हमें जब भी कोई तकलीफ़ होती है, राइट, तब हम प्रे करते हैं. ओके. अदरवाइज सम पीपल डू, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दे डोंट डू. बट जब भी कोई तकलीफ़ होती है वी जस्ट प्रे. ओके. सो वी रिमेंबर आवर गॉड. अगर कोई तकलीफ़ होगी ही नहीं ज़िंदगी में तो कोई गॉड को क्यों याद करेगा? उनका ये कहना था. एंड दैट्स वाई ही वाज जस्ट कन्फ्यूज कि मुझे ये देना चाहिए रेस्ट या नहीं देना चाहिए. ठीक है. सो एंड रेस्ट इन नेचर, not the god of nature, so both should losers be. Yet let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness. Okay, so God ने क्या डिसाइड किया एट द एंड कि ठीक है उनको सब लेने दो, रेस्ट तो मैं नहीं दूंगा. लेट देम बी इन राइपनिंग रेस्टलेसनेस. राइपनिंग रेस्टलेसनेस बेसिकली मीन्स उनको एंग्जाइटी रहे, उनको डिससेटिस्फैक्शन रहे. ओके. अब देखो, राइटनिंग रेस्टलेसनेस मैं आपको ईजीली समझाती हूँ. सी, अगर आपके पास कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव, हाँ, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, राइट. सो व्हाट यू विल थिंक, चलो अभी मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है बट इसके बाद मुझे और अच्छा मोबाइल चाहिए, राइट. यू विल थिंक लाइक दैट. आप ऐसा तो नहीं सोचोगे चलो ये मोबाइल है इससे ही काम चल जाएगा. मतलब चलेगा बट फॉर द फ्यूचर रन, फॉर द फ्यूचर गो, यू विल थिंक कि हाँ मुझे और अच्छी चीज़ लेनी है. व्हेन यू आर लिविंग इन अ स्मॉल हाउस यू विल थिंक कि मुझे बड़े घर में रहना है, राइट. यू विल थिंक लाइक दैट. अगर आपके पास बड़ा बंगला भी होगा यू विल थिंक नहीं और कुछ अच्छा चाहिए. Okay, so there will be a dissatisfaction in people. There will be
kind of an anxiety around. So let him be rich and weary. Weary basically means very tired. ठीक है, ये डिससेटिस्फैक्शन की वजह से वो काम करेगा. ही विल बी, मतलब द मैन विल बी टायर्ड. वेरी बेसिकली मीन्स टायर्ड. जब वो इतना काम करेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, सो ही विल वर्क मोर टू गेट स्टफ, है ना. ही विल डू मोर हार्ड वर्क कि मुझे ये चीज़ अटेन करनी है. दैट एट लास्ट इफ गुडनेस lead him not, yet weariness may toss him into my breast. Basically जब वो काम करता रहेगा, जब वो थोड़ा दुख में रहेगा या फिर नॉट इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, सो ही विल डेफिनेटली रिमेंबर मी. सो ऐसा गॉड बोलते हैं. ओके, सो दिस पोएम बेसिकली मीन्स कि गॉड ने सारी चीज़ें हमें दी है, वेदर इट बी स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर और प्लेजर, हैप्पीनेस भी दिए, सब दिया है. बट वन थिंग दैट ही डिडंट गिव टू अस वाज रेस्ट. रेस्ट वॉज समथिंग जो उन्होंने हमें नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? बिकॉज सी देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल योर. इफ यू सी दिस वन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि गॉड ने ह्यूमंस को रेस्ट क्यों नहीं दिया. ठीक है, अगर दिया होता तो क्या होता. सी देयर इज़ अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. अगर गॉड ने हमें रेस्ट दिया होता तो सब आलसी हो जाते. ठीक है, अगर रेस्ट होता तो सब आलसी हो जाते. देखो, अगर सारी चीज़ें हमारे पास होती सो वी वुड नॉट वर्क, और अगर हम काम नहीं करते सो डेफिनेटली हम लोग बेटर नहीं बन पाते, राइट. सो अगर हमारे पास रेस्ट होता सो हम लोग आलसी होते, कुछ काम नहीं होता था, है ना, कोई परेशानी नहीं होती, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग, राइट. सो इसके लिए गॉड डिसाइडेड कि नहीं, इनको रेस्ट नहीं देना है. सो अब जब रेस्ट नहीं है, सो वी हैव वर्क, वी आर वरिड, वी आर एंशियस. सो दैट्स द रीज़न कि हम गॉड को याद करते हैं. यही कहा था गॉड ने कि दे विल अडोर द ट्रेजर्स दैट आई एम गिविंग देम रादर देन मी, अगर मैं इनको रेस्ट नहीं दूंगा. सी दिस लाइन, नहीं सॉरी, नॉट दिस लाइन बट या दिस लाइन. सो दे विल अडोर माई ट्रेजर्स, मतलब वो वही चीज़ों में घुले मिले रहेंगे, मतलब जो मैंने ट्रेजर्स दिए बस उन्हीं को यूज़ करेंगे. एंड दे विल बी वेरी कंफर्टेबल इन देयर जोन. दे विल अडोर माई ट्रेजर्स कि हाँ हमारे पास तो सब कुछ है. दे विल नॉट रिमेंबर मी, जिसने उन्हें ये दिया. सो जस्ट फॉर हिम कि उन्हें लोग याद करें, प्लस फॉर द वर्ल्ड टू बी बेटर, ही नॉट गिफ्टेड अस rest so that people work hard, they become better versions of themselves, and basically सब कुछ अच्छा हो. So I hope this poem was easy for you to understand. If there's any doubt, you can just comment down below. I'll try to resolve your query, and yeah, that's it. So yes, this is another question. Textual questions are definitely important, so do that, don't miss them, राइट. व्हाट डिड गॉड्स ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स कंटेन. सी मैंने आपको बोला था, आप मार्क कर लो, वही सारे आंसर्स है. स्ट्रेंथ, विजडम, ऑनर, प्लेजर, अब तो मुझे भी याद हो गया है. सो या ये सारी चीज़ें हैं. इंग्लिश वर्कशॉप इज़ समथिंग दैट यू कैन डू अगेन, बट येस इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. जैसे ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आने लायक हैं और कुछ कुछ नहीं भी हैं. सो यू हैव टू सी कि क्या आने लायक है, क्या आने लायक नहीं है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स. या डिस्कस समथिंग, एंड या ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अप्रिसिएशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आ सकता है अप्रिसिएशन, सो डू द अप्रिसिएशन एज वेल, राइट. देखो, आई वुड से अप्रिसिएशन अगर आप करते हो सो आप पोएम समझ लो एंड उसके बाद अप्रिसिएशन कर लो. आपके ओरल्स वगैरह में तो एक तो अप्रिसिएशन पूछा ही जाएगा, प्लस वाइल यू हैव टू राइट एग्ज़ाम्स, सो आपको अगर अप्रिसिएशन आता होगा सो यू विल बी एबल टू डू इट मोर फास्ट, है ना. बेसिकली अप्रिसिएशन याद करने का यही मोटो होता है कि आप फटाफट एग्ज़ाम में लिख पाते हो. सी अंडरस्टैंडिंग स्टफ इज़ गुड, बट अंडरस्टैंड करने के बाद आपको डेफिनेटली लर्न करना पड़ता है, बिकॉज आपके पास पेपर में उतना टाइम नहीं होगा टू एक्चुअली थिंक अ लॉट. उस समय आपका शायद दिमाग भी ना चले, यू नेवर नो, राइट. सो इसके लिए इट्स जस्ट टोल्ड दैट अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड जस्ट लर्न. ओके,
definitely getting better at what you know is definitely good. So first understand what is given, and उसके बाद आप उसको keywords याद कर सकते हो, या whatever जो भी आपको तरीका ठीक लगता है उस हिसाब से आप याद कीजिए. अप्रिसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. दूसरी बात वॉट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़, जो आपकी पोएम्स होती है उसके बाजू में वॉट यू कैन डू इज़, आप हर एक लाइन में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए वो लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी होगा वाइल यू रिवाइज फॉर योर एग्जामिनेशंस. ठीक है, ये एक काम अच्छा है. दूसरा ये है दैट सी दिस इज़ नॉट सो कंपल्सरी, बट इफ़ यू वांट टू, अगर आपको लाइंस के एक्सप्लेनेशंस लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, बट या इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो डोंट डू दैट. बट येस, फिगर्स ऑफ स्पीच तो आपको लिख के रखने चाहिए. ओके, एंड वाइल यू राइट द फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ हुआ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एज वेल कि अच्छा ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है तो एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा, बिकॉज फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स होते हैं. सो यहीं आपकी उसकी भी तैयारी हो सकती है इफ़ यू डू दिस right. Meanings is definitely something that you can go through and just brush it up. बाकी तो सब कुछ ठीक है, and yes, that's it for this poem. I'll meet you soon. Till then, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel if you've not already, and yes, I'll meet you soon. Until then, goodbye.